Hello class, we are studying the sexual reproduction in flowers, in plants. Okay, so in the reproduction process we had studied till pollination. पॉलिनेशन हो चुका है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है. तो अभी पॉलिनेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर पॉलिनेशन द प्रोसेस विच विल टेक प्लेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. Okay, so in this video we are going to study about fertilization. So students, what is fertilization? Whenever the male gamete, what is male gamete? Male gamete means male reproductive cell, right? And female gamete means female reproductive cell. Okay, so when the male reproductive cell and the female reproductive cell, they both fuse with each other they both join with each other and fuse with each other, then this process is called fertilization. Okay, and after fertilization, in this fertilization process, what forms? When this male and female gamete fuses with each other, then what forms, what is produced in this process students? Zygote is produced. Okay, zygote मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल एक दूसरे से फ्यूज होते हैं और फॉर्म होता है, दो सेल फ्यूज होके एक सेल बनती है, सिंगल सेल, एंड दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट, राइट? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फ्यूज विथ ईच अदर. That process is called fertilization, and after fertilization a single cell zygote forms. Okay, दो सेल मिलके एक सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स में, फ्लावर्स में हमने क्या क्या देखा था? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या होते हैं फ्लावर्स में? In flowers, the male reproductive cell is pollen grain, right? The male reproductive cell is pollen grain and the female reproductive cell is egg cell. Okay, the female reproductive cell is egg cell. So what happens? Let's see students. Stigma, style, ovary, and this is the ovule. So students, what happen when as the pollen grain, as जैसे ही पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन आ चुका है हमारे कहाँ पे? स्टिग्मा पे. सो एज द पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है स्टूडेंट्स, सो ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन का मीन्स है कि अब इस पॉलन ट्यूब में इस पॉलन ग्रेन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा. Okay, a tube-like structure will be formed in this pollen grain, and this tube-like structure is called pollen tube. Okay, this tube-like structure is called pollen tube. If
दिस पॉलन ग्रेन विल नॉट लैंड ऑन स्टिग्मा, अगर ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड नहीं हुआ है, रास्ते में इधर उधर कहीं वेस्ट हो गया है, at that time this pollen grain will never germinate. Okay, this pollen grain will only and only germinate when it will land on the stigma. Okay, and stigma of the proper variety. Okay, अगर ये P का pollen grain है तो when it will land on the stigma of the P flower, जब ये P के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा then only it will germinate. Okay, तो ये कैसे होता है, क्यों ये तभी जर्मिनेट करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब पी के ही प्लांट फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस पे आएगा, एट दैट टाइम इस स्टिग्मा से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और उन केमिकल्स के थ्रू इस पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है. अगर किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो ये स्टिग्मा वो केमिकल्स रिलीज नहीं करेगी और इसमें पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, सो व्हेन द सेम वेराइटी ऑफ पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा देन इट विल जर्मिनेट, मींस इन दिस अ पॉलन ट्यूब विल बी फॉर्म्ड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर जनरली एवरी सेल इनसाइड, जनरली inside each cell there is single nucleus. Okay, but inside the pollen grain, inside this pollen grain there are two nucleus, two male nucleus are present. Okay, two male nuclei, because there are two, it's plural, so there are two male nuclei present in the pollen grain. ओके, सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ये दोनों मेल न्यूक्लियाई इस पॉलन ट्यूब के थ्रू आते हैं. ओके, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू आते हैं एंड दिस, ये पॉलन ट्यूब एंटर करती है कहाँ पे, ओव्यूल में. दिस पॉलन ट्यूब विल एंटर इन द ओव्यूल एंड इस दोनों मेल न्यूक्लियाई में से एक मेल न्यूक्लियाई जाके यहाँ पे ओव्यूल के अंदर देयर इज प्रेजेंट एग सेल. इनसाइड द ओव्यूल व्हाट इज प्रेजेंट, ये जो मैंने सेंटर में बनाई है दिस इज एग सेल. ओके, इनसाइड ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है और ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल न्यूक्लियाई होते हैं ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड दिस एग सेल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल. ओके, सो ये दोनों मेल न्यूक्लियाई इस पॉलन ट्यूब के थ्रू आते हैं, ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है एंड आफ्टर दैट इनमें से एक मेल न्यूक्लियाई जाके फ्यूज हो जाता है इस एग सेल से. ओके, सो एक मेल न्यूक्लियाई, वन male nucleus will fuse with the egg cell, right? और ये male nucleus क्या है, it is the male, this is the symbol of male students. Okay, so it is the male reproductive cell and what is this egg cell, this egg cell is the female, this is the symbol of female. Okay, it is the female reproductive cell. So male nucleus, one male nucleus and egg cell will fuse और फ्यूज होने के बाद यू टेल मी व्हाट विल बी प्रोड्यूस, व्हाट विल बी फॉर्म्ड, क्या बनेगा, जाइगोट. ओके, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा अब यहाँ पे. सो व्हाट इज बीइंग हैपेंड इन दिस होल प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, आफ्टर pollination the pollen grain lands on the stigma and when pollen grains lands on the stigma of its same variety then the pollen grain will germinate, means in pollen grain the pollen tube formation will take place. Now through this pollen tube the two main nuclei of the pollen grain will come and this pollen tube will enter in the ovule. So through this pollen tube the one male nucleus will go inside the ovule and fuse with the egg cell. So male nucleus and egg cell will fuse and zygote will be formed. Okay, so अब हमारा fertilization process हो गया है फ्लावर में, zygote प्रोड्यूस हो चुका है. नाउ वी विल सी व्हाट विल हैपन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या बन चुका है, अब यहाँ पे बन चुका है जाइगोट, राइट? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन चुका है. अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा दिस जाइगोट विल बी कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो. ओके, ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है स्लोली, इस जाइगोट में डिवीजन होंगे, ये डेवलप होगा और इससे इस जाइगोट से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो. ठीक है, और इस जाइगोट के बाहर ये क्या है,
ये ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है, दिस ओव्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड। ओके, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, जाइगोट, ओव्यूल के अंदर का जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, और ओव्यूल के आउटसाइड क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, ये ओवरी प्रेजेंट है, राइट। सो दिस ओवरी विल बी कन्वर्टेड टू फ्रूट। ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ओके, सो ये सारे चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल दीज चेंजेस टेक्स प्लेस, द ओवरी ऑफ द फ्लावर विल बी कन्वर्टेड टू द फ्रूट, inside the ovary the ovule will be converted to seed, and inside the ovule the zygote will be converted to the embryo, right। and ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं, श्रिंक होके फॉल ऑफ हो जाते हैं। ओके, दे विल फॉल ऑफ, द सेपल्स, पेटल्स, ऑल द थिंग्स विल फॉल ऑफ। ओके, वो गिर जाएंगे, फ्लावर से सेपरेट हो जाएंगे, और फ्रूट का फॉर्मेशन हो चुका है ओवरी से। नाउ वी विल ईट दिस फ्रूट एंड आफ्टर ईटिंग द फ्रूट वी थ्रो द सीड्स। ओके, सो इन दिस वे दीज सीड्स विल बी डिस्पर्स्ड। अब क्या होगा, फ्रूट के फॉर्मेशन के बाद सीड्स का डिस्पर्सल होता है। ओके, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, दिस डिस्पर्सल ऑफ सीड्स टेक्स प्लेस बाय वेरियस मीन्स, बहुत तरह से होता है ये। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ईट फ्रूट लाइक मैंगो एंड वी थ्रो द सीड्स, so it is dispersed, right, with the help of wind also dispersal of seed takes place, by dehiscence also means some fruits will rupture। okay, some fruits क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, rupture, they ruptures, dehiscence takes place and the seeds dispersed। okay, and by the help of water also dispersal of seeds takes place। now why dispersal of seeds takes place students, dispersal of सीड क्यों होता है, क्यों नहीं सारे के सारे सीड एक ही प्लेस पे फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सपोज दिस इज अ प्लांट, राइट, इफ ऑल द सीड विल फॉल नियर दिस पेरेंट प्लांट, ओके, इफ ऑल द सीड विल प्रेजेंट नियर दिस पेरेंट प्लांट, सो क्या होगा, सारे सीड्स को ग्रो करने के लिए एडिक्वेट स्पेस भी नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिलेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी ही दूर में, इतनी डिस्टेंस में सारे के सारे सीड ग्रो कर रहे हैं, और इतनी सॉइल में से सबको न्यूट्रिशन चाहिए, तो दे विल नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, दे विल नॉट गेट प्रॉपर स्पेस ऑल्सो। ओके, एंड ओवर क्राउडिंग विल टेक प्लेस नियर द पेरेंट प्लांट्स। सो टू अवॉइड दिस ओवर क्राउडिंग एंड टू provide the proper nutrition and space to these seeds, dispersal of seeds takes place। so students, this was all about the fertilization process। fertilization हो चुका है, हमारा फ्रूट बन चुका है, सीड बन चुका है, एंड नाउ सीड, अब फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट है और उस सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो। तो अब सीड कैसा होता है और सीड के अंदर और क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अबाउट इट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।